Hello dear students, the topic for today's lecture is bacteriological characteristics of water. In the previous lectures we have studied two types of characteristics of water, the physical and chemical characteristics. Today we'll be studying the third type of characteristics of water, that is bacteriological characteristics. So first of all, let us understand what are bacteria. So bacteria are single-celled organisms which do not have any nucleus and chlorophyll, so they cannot manufacture their own food. Because आपको पता है chlorophyll क्या होता है, किसी भी organism को food manufacturing के लिए help करता है. So bacteria do not have any nucleus and no chlorophyll. They are generally classified on two bases. The first basis on the basis of disease causing capacity. इस basis पे bacteria are divided into two types, pathogen and non-pathogens. Pathogens means the bacteria which can cause any disease are called as pathogens, and non-pathogens means the bacteria which cannot cause any disease, matlab they are harmless, they are defined as non-pathogens. Next classification is based on the requirement of oxygen. So on this basis the bacteria are divided into three types. Aerobic bacteria, these are the bacteria which requires oxygen for their survival, means they cannot survive without oxygen. The second one is anaerobic bacteria, these are the bacteria which can survive without oxygen. And third one is facultative bacteria, these are the bacteria which may or may not require oxygen, means ये दोनों condition में survive हो सकता है, either oxygen available है या फिर ना भी available है. So these were the type of bacteria. Now there is a special group of bacteria which is called as coliform group. This group has a significance in determining the pathogens in water. How I will tell you later in the lecture. First of all, let us understand what is this coliform group. So it is a group of rod-shaped non-pathogen bacteria whose presence or absence in the water indicates the presence and absence of pathogens. So coliform group एक बैक्टीरिया का ग्रुप है जो कि रॉड शेप्ड होते हैं एंड दे आर नॉन पैथोजेंस, मीन्स दे आर हार्मलेस बैक्टीरिया. अब कॉलीफॉर्म ग्रुप की प्रेजेंस एंड एब्सेंस इन वाटर ही हमें बताती है कि पानी में आपके पैथोजेंस प्रेजेंट है या नहीं है. मीन्स पानी में हमें ऑब्वियसली पैथोजेंस टेस्ट करने होंगे बिकॉज पैथोजेंस आपके क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं. सो जब भी हम वाटर टेस्टिंग करेंगे दैट इट इज़ सेफ टू ड्रिंक तो हम पैथोजेंस को टेस्ट करेंगे. बट इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग पैथोजेंस वी टेस्ट दीज कॉलीफॉर्म ग्रुप विच इज़ अ नॉन पैथोजन टाइप ऑफ बैक्टीरिया एंड देन वी कैन टेल कि हमारे वाटर में पैथोजेंस प्रेजेंट है या नहीं. Now how is it possible that we need to test the pathogens but we are testing non pathogens? So इसके पीछे रीज़न ये होता है कि पैथोजेंस को टेस्ट करना वाटर में इन्वॉल्व्स वेरी हैवी एक्सपेरिमेंट्स एंड वेरी लॉन्ग एक्सपेरिमेंट, मीन्स बहुत आपके लंबे लंबे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं. एंड जनरली क्या होता है, जो नॉन पैथोजेंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं दे आर वेरी शॉर्ट. ऑन व्हाट वी डू, नॉन पैथोजेंस की एक क्वालिटी होती है दैट दे रिमेन इन वाटर लार्जर देन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन पैथोजेंस. मीन ये जो कॉलीफॉर्म ग्रुप है ये वाटर में पैथोजन से ज़्यादा देर के लिए रुक सकता है. इसकी जो एज होती है वाटर में मीन्स वो पैथोजन से ज़्यादा होती है. सो इन केस हम पहले अपने वाटर में इनको टेस्ट करेंगे कॉलीफॉर्म ग्रुप को, और अगर हमारे वाटर में कॉलीफॉर्म ग्रुप ही नहीं प्रेजेंट है सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट पैथोजेंस भी नहीं प्रेजेंट होंगे बिकॉज द लाइफ ऑफ नॉन पैथोजेंस यानी ये कॉलीफॉर्म ग्रुप इज़ ग्रेटर देन पैथोजेंस. सो मीन्स जब उनकी लाइफ ज़्यादा है एंड वही पानी में नहीं प्रेजेंट है तो ये हमें बताता है इनडायरेक्टली कि पैथोजेंस भी हमारे वाटर में नहीं है. सो दैट इज़ वाई instead of testing pathogens in the water we generally test this coliform group and then we can tell that whether the water is carrying the pathogens or not, right? So that is why we test this coliform group in water. Generally there are two types of method for testing these coliform group. The first one is membrane filter technique. In this method what we do, जो हमारा वाटर सैंपल है जिसमें कि हमें टेस्ट करना है कि पैथोजेंस प्रेजेंट हैं कि नहीं, वी पास दैट वाटर थ्रू अ स्पेशली डिज़ाइंड फिल्टर पेपर. अब क्या होगा, जो हमारे बैक्टीरिया होंगे वो इस फिल्टर पेपर में रिटेन हो जाएंगे. अगर जो ये कॉलीफॉर्म ग्रुप प्रेजेंट है तो वो रिटेन हो जाएगा इस फिल्टर पेपर में. Now we'll put this filter paper into a pad which is saturated with a suitable nutrient medium. Means now a filter paper में बैक्टीरिया तो रिटेन हो चुके हैं बट वो हमें विजिबल नहीं है. सो हम क्या करेंगे, इनको ग्रो कराएंगे बैक्टीरिया को. तो इसीलिए इनको ग्रो करने के लिए हम इन्हें प्लेस करेंगे एक पैड पे जो कि एक न्यूट्रिएंट मीडियम से सैचुरेटेड रहता है. न्यूट्रिएंट मीडियम से क्या होगा, जब हम इन बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट सप्लाई करेंगे सो दे विल स्टार्ट ग्रोइंग ऑन दैट फिल्टर पेपर. सो आफ्टर सम टाइम क्या होगा, जब हम इन्हें इंक्यूबेट करेंगे ये ग्रो करना शुरू हो जाएंगे और इनकी एक विजिबल कॉलोनीज आपको फिल्टर पेपर में दिखने लग जाएंगी एंड ईच कॉलोनी विल रिप्रेजेंट वन बैक्टीरिया. सो इस तरीके से जब आफ्टर सम डेज जब उसमें कॉलोनीज आपकी दिखने लग जाएंगी, विजिबल हो जाएंगी, सो वी कैन काउंट एंड वी कैन कम टू नो दैट हाउ मेनी बैक्टीरियाज आर प्रेजेंट इन दैट वाटर. सो दिस इज योर मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक.
नाउ व्हाट आर द न्यूट्रिएंट मीडियम विच आर जनरली यूज. तो अगर आपको टोटल कॉलीफॉर्म काउंट करना है, सो द न्यूट्रिएंट मीडियम इज M endo broth and the incubation is done at 35 degrees Celsius. And if you have to determine the fecal coliform, which is also a type of coliform bacteria, then the medium to be used is MFC broth with the incubation at 44.5 degrees Celsius. So this was all about your membrane filter technique. Second method to test the coliform bacteria in your water is multiple tube fermentation technique. In this method, generally the testing is done in two what we can say stages. The first stage is a presumptive stage and the another one is confirmative stage. फर्स्ट स्टेज जो कि आपकी प्रिजम्पटिव स्टेज है, उसमें हम क्या करते हैं, बेसिकली इस मेथड में हम 3 सेट्स ऑफ टेस्ट ट्यूब्स लेते हैं. एक सेट में आपके 5 टेस्ट ट्यूब्स होते हैं. दैट मीन्स टोटल आपकी 15 टेस्ट ट्यूब्स हो गई, राइट. अब इन सारी 15 टेस्ट ट्यूब्स में हम एक ब्रॉथ रखते हैं जिसमें कि लैक्टोज होता है. ब्रॉथ इज़ बेसिकली द फूड फॉर द बैक्टीरिया. सो फूड कंटेनिंग लैक्टोज इज पुट इनटू ऑल दीज 15 टेस्ट ट्यूब्स. नाउ व्हाट हैपन्स, हमने लैक्टोज वाला ही ब्रोथ क्यों रखा, बिकॉज जो आपके कॉलीफॉर्म होता है उनमें एक क्वालिटी होती है दैट दे फर्मेंट लैक्टोज विद द प्रोडक्शन ऑफ गैस. मतलब वो लैक्टोज का फर्मेंटेशन करते हैं एंड एक गैस वॉल्यूट करते हैं. सो दैट इज़ वाई हम 15 टेस्ट ट्यूब्स में इस ब्रोथ को रखते हैं. एंड देन जो हमारा पहला सेट है, मतलब 5 टेस्ट ट्यूब का एक सेट है, राइट. जो पहला सेट है उसमें हम 10 ml ऑफ वाटर सैम्पल रख देंगे जिस वाटर को हमें टेस्ट करना है. जो अनदर सेट है उसमें हम 1 ml ऑफ वाटर सैम्पल रखेंगे. एंड जो लास्ट सेट है उसमें हम 0.1 ml ऑफ वाटर सैम्पल रख देंगे. अब इन सारी टेस्ट ट्यूब्स को हम इंक्यूबेट करेंगे 38 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे फॉर अ टाइम पीरियड ऑफ 48 आवर्स, राइट. एंड 48 आवर्स के बाद हम इनमें फॉर्मेशन ऑफ गैस को नोटिस करेंगे. तो अगर आपकी गैस इवॉल्व हुई है तो दैट मीन्स आपके पानी में कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है. एंड अगर नहीं हुई है तो इसका मतलब कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं है. अब इससे आगे में बढ़ना है कि नहीं, तो ये डिपेंड करता है. अगर गैस इवॉल्व हुई है तो दैट मीन्स वाटर में आपका कॉलीफॉर्म प्रेजेंट है. एंड नाउ वी नीड टू बी श्योर दैट कि कॉलीफॉर्म ही है या कोई और बैक्टीरिया. तो हम क्या करेंगे, कन्फर्मेटरी टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे. एंड अगर गैस इवॉल्व नहीं हुई, दैट मीन्स वाटर में आपका जो कॉलीफॉर्म है वो प्रेजेंट ही नहीं है बिकॉज गैस इवॉल्व हुई, तो हम यहीं पे रुक जाएंगे एंड हमारे टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी. मीन्स दैट द कॉलीफॉर्म आर नॉट प्रेजेंट इन वाटर. एंड दैट इज़ वाई जब कॉलीफॉर्म ही प्रेजेंट नहीं है तो पैथोजेंस भी नहीं प्रेजेंट होंगे. बिकॉज एज आई टोल्ड यू, कॉलीफॉर्म लिव फॉर अ लॉन्गर पीरियड इन वाटर देन पैथोजेंस, राइट. सो अगर प्रिजम्पटिव में गैस इवॉल्व नहीं हुई तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, दैट द टेस्टिंग इज़ डन. लेकिन अगर प्रिजम्पटिव में गैस इवॉल्व हुई है तो हम कन्फर्मेटरी स्टेज की तरफ मुड़ेंगे. सो अब कन्फर्मेटरी स्टेज में क्या होता है, जिस टेस्ट ट्यूब से आपकी गैस इवॉल्व हुई है उस टेस्ट ट्यूब से हम थोड़ा थोड़ा पोर्शन निकाल के दूसरी एक ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे. एंड इस ट्यूब में होगा आपका ग्रीन बाइल ब्रोथ. वाई वी आर यूजिंग ग्रीन बाइल ब्रोथ, बिकॉज ग्रीन बाइल ब्रोथ ही एक ऐसा ब्रोथ है जिसे कि सिर्फ कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया ही फर्मेंट कर सकता है एंड गैस इवॉल्व कर सकता है. मीन्स जो आपका लैक्टोज होता है उसको तो कॉलीफॉर्म के साथ साथ और कोई बैक्टीरिया भी फर्मेंट कर सकता है, बट ग्रीन बाइल ब्रोथ को सिर्फ आपके कॉलीफॉर्म ग्रुप ही फर्मेंट कर सकते हैं. सो दैट इज़ वाई फॉर द कन्फर्मेटरी टेस्ट वी टेक द ग्रीन बाइल ब्रोथ. सो जितने भी ट्यूब से गैस इवॉल्व हुई है उससे हम कुछ सैम्पल निकाल के दूसरी टेस्ट ट्यूब्स में ट्रांसफ़र करेंगे जिसमें कि ग्रीन बाइल ग्रोथ होगा. एंड देन अगेन वील इंक्यूबेट दिस मिक्सचर फॉर अ पीरियड ऑफ 48 आवर्स. एंड देन वील हम क्या टेस्ट करेंगे कि गैस इवॉल्व हुई है या नहीं हुई है. अब जिन टेस्ट ट्यूब से गैस इवॉल्व हुई होगी उनमें हम कंफर्म हो जाएगा कि इस टेस्ट ट्यूब्स में आपका जो कॉलीफॉर्म ग्रुप है वो प्रेजेंट है. एंड वील काउंट द नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब विच आर शोइंग दिस पॉजिटिव टेस्ट. मतलब इन टेस्ट ट्यूब्स का जो टेस्टिंग हुई है पॉजिटिव हुई है जिनसे आपकी गैस इवॉल्व हुई है, राइट. अब ईच सेट जो 5 ट्यूब्स का है उससे हम नंबर ऑफ टेस्ट ट्यूब विच आर बीइंग टेस्टेड एज पॉजिटिव वो काउंट कर लेंगे, ठीक है. फॉर एग्जांपल जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने जो 15 टेस्ट ट्यूब्स लिए हैं, 5 10 ml के सैंपल के साथ, 5 1 ml के सैंपल के साथ एंड 5 0.1 ml के सैंपल के साथ. इस फिगर में आप देख सकते हैं फर्स्ट सेट में 2 टेस्ट ट्यूब्स पॉजिटिव आई हैं. दिस इज़ फॉर एन एग्जांपल ओनली, ठीक है. दूसरे सेट में एक टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव आई है एंड तीसरे सेट में अगेन एक टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव आई है. टेस्ट ट्यूब पॉजिटिव मीन्स जो है इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है इन द ग्रीन बाइल ब्रोथ. तो ये कॉम्बिनेशन बन जाएगा आपका 2-1-1 का. नाउ क्या होता है, जनरली जो आपका कोड है उसमें हर एक कॉम्बिनेशन के लिए एक वैल्यू MPN मीन्स मोस्ट प्रोबेबल नंबर. ये किसका मोस्ट प्रोबेबल नंबर है, बैक्टीरिया का, कॉलीफॉर्म ग्रुप का. तो हर एक कॉम्बिनेशन के लिए मोस्ट प्रोबेबल नंबर स्पेसिफाई किया जाता है, जैसे कि आप इस टेबल में देख सकते हैं. यू कैन सी दैट फॉर ईच कॉम्बिनेशन देयर इज़ एन MPN इंडेक्स पर 100 ml.
तो इसी टेबल से हम अपना पहले कॉम्बिनेशन देखते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन बना है. देन वी टेक द वैल्यू ऑफ MPN विच इज़ मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया पर 100 ml. उससे हम ये डिटरमाइन कर लेते हैं. सो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे इस एग्जांपल में 211 कॉम्बिनेशन बना था. सो अब आप टेबल से देख सकते हैं दैट फॉर 211 कॉम्बिनेशन द MPN वैल्यू इज़ 9 पर 100 ml. मीन्स अगर आपका सैम्पल 300 ml का है तो 100 ml में 9 है तो 300 ml में हो जाएंगे आपके 9 इंटू 3 दैट 27 MPN. और MPN मीन्स ये है आपके बैक्टीरिया, मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया, राइट. तो इसी तरीके से आपकी और भी कॉम्बिनेशन के लिए टेबल होती है. ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल आपको शो की है. तो इसी तरह हम हर कॉम्बिनेशन के लिए पहले अपना कॉम्बिनेशन देखते हैं टेस्ट ट्यूब का क्या बना है, उसके लिए हम मोस्ट प्रोबेबल नंबर ऑफ बैक्टीरिया की वैल्यू ले लेते हैं. तो ये होता है आपका मल्टीपल ट्यूब फॉर्मेंटेशन टेक्निक. इस तरीके से हम इसमें कॉलीफॉर्म डिटरमाइन कर सकते हैं. सो दीज वर द टू डिफरेंट मेथड्स टू डिटरमाइन द कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया. अगेन आई एम टेलिंग यू व्हाई वी आर डिटरमाइनिंग दिस कॉलीफॉर्म ग्रुप, व्हाई वी आर नॉट टेस्टिंग द पैथोजेंस. सो बिकॉज एज टेस्टिंग ऑफ पैथोजेंस इन्वॉल्व वेरी हैवी एंड वेरी लार्ज टाइम टेकिंग प्रोसेसेस, और इतना टाइम हमारे पास जनरली होता नहीं है. तो हम क्या करते हैं, क्योंकि कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया की एक प्रॉपर्टी होती है दैट दे रिमेन इन वाटर फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन पैथोजेंस. सो हम कॉलीफॉर्म को टेस्ट करते हैं. अगर हमारे वाटर सैंपल में कॉलीफॉर्म प्रेजेंट नहीं है या बहुत कम कॉलीफॉर्म है तो दैट इनडायरेक्टली इंडिकेट्स दैट पानी में आपके पैथोजेंस भी नहीं प्रेजेंट है, राइट. सो दैट इज़ वाई वी टेस्ट पैथोजेंस इन वाटर एंड दीज वर द टू मेथड्स टू टेस्ट द पैथोजेंस in water. Hope the method is clear to you. Any doubt, you can get back for any doubt, right? Thank you.